رمضان کے مہینے میں 2 عبادتیں اہم ہیں۔ نمبر 1 روزہ، ہم سب جانتے اللہ نے فرض کیے ہیں۔ اللہ ہم سب کو روزے کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور حدیثوں میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عبادات کا بدلہ جنت ہے، لیکن روزے کا بدلہ جنت نہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی روزے کا بدلہ کیا ہے؟ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا بدلہ خود اللہ کی ذات ہے، یعنی اللہ رب العالمین خود بدلہ دینے والے ہیں۔ لیکن کب؟ جب ہمارا روزہ قبول ہو جاوے، جب ہمارا روزہ اللہ کی بارگاہ میں منظور ہو جاوے۔ اگرچہ گرمی کے رمضان ہے، بڑی شدت کی دھوپ ہے، گرمی کے رمضان کی وجہ سے روزے کو ہرگیز نہ چھوڑنا، اس لیے کہ میرے پیارو جب بھی ہم دنیا کی پیاس کو برداشت نہ کرنے کا تصور کریں، دنیا کی بھوک کو برداشت نہ کرنے کا تصور کریں، تو فوراً اس وقت آخرت کو سامنے لے آؤ۔ جہنم کی آگ کیسے برداشت ہوگی؟ جہنم کی تکلیفیں کیسے برداشت ہوگی؟ اور حدیث میں فرمایا، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے سرکار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ رب العالمین کسی قوم کو تباہ و برباد کر دینے کا فیصلہ کرتے ہیں، جب اللہ پاک کسی قوم کو ذلیل کر دینے کا فیصلہ کرتے ہیں، تو وہ قوم رمضان کے روزے رکھنا چھوڑ دیتی ہے۔ اور معراج میں ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مہمان بنے ہیں، آپ کو جنت کے نظارے بھی کروائے گئے، جہنم کے نظارے بھی کروائے گئے، اور جہنم میں امت کے اعمال کے نتیجے میں جو سزائیں ہو رہی تھی وہ سزائیں بھی ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی گئی۔ ہمارے نبی نے جہنم میں کچھ لوگوں کو دیکھا جو اوندھے لٹکے ہوئے ہیں، جو الٹے لٹکے ہوئے ہیں، یعنی ان کا سر نیچے کی طرف ہے اور پیر اوپر کی طرف ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے ساتھی حضرت جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کو ایسا ذلت والا عذاب دیا جا رہا ہے، جن کو اوندھا لٹکایا ہوا ہے، سر اوپر کی طرف ہے، سر نیچے کی طرف ہے اور پیر اوپر کی طرف ہے، اور ان کے سر کو آگ سے جلایا جا رہا ہے، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا میرے محبوب، میرے نبی، یہ آپ کی امت کے رمضان کے روزہ چھوڑنے والے لوگ ہیں جو رمضان کے مہینے کا روزہ نہیں رکھتے تھے، اس لیے رمضان کے مہینے کا روزہ ضرور رکھنا ہے۔ ہر ایک روزہ جس کو کسی بھی حال میں چھوڑنا نہیں ہے، کیسی بھی مجبوری ہو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان المبارک کا ایک روزہ بغیر کسی شرعی عذر کے، کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی عذر نہیں تھا، بغیر کسی شرعی عذر کے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس نے ساری زندگی کے روزے رکھ لیے صرف ایک روزے کے کفارے میں، پھر بھی رمضان المبارک کے ایک روزے کی برکت حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اتنی اہمیت والا ہے یہ ایک روزہ۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا جو بھی امتی مہینے کے 3 دن کے روزے رکھے گا اور رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھے گا، اللہ پاک اس کے دل کو کھوٹ سے، وساوس سے پاک اور صاف فرما دیں گے۔ تو میرے پیارو، روزہ اللہ کی محبوب عبادت ہے، اور اللہ ہمیں روزہ رکھوا کر ہمارا نقصان کرنا نہیں چاہتے، بلکہ ہمیں بہت بڑے مقام اور مرتبے تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے ہیں، اور صرف تم پر ہی نہیں، تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے تھے، لیکن آگے مقصد بتلایا، لعلکم تتقون۔ تم نے دنیا کی زندگی غفلت میں گزاری ہے، وہ غفلت کی چادر کو اتارنے کے لیے، تاکہ تمہارے دل میں میرا ڈر آ جائے، تمہارے دل میں میری محبت آ جائے، تمہارے دل میں میرے احکام کے مطابق اور میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اور اللہ کے قرآن کریم میں فرماتے، میرے بندوں اور میری بندیوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں
नहीं है। अय्यामम मादूदात, मैंने कोई 1 साल के रोजे फर्ज नहीं किए, मैंने कोई 6 महीने के रोजे फर्ज नहीं किए, मैंने कुछ चंद गिने चुने दिन के। जैसे हर इस्लामी तारीख किसी को याद नहीं रहती, लेकिन रमजान की तारीख है याद रहती है। आज पहला रोजा, हम अपनी जुबान से कहते हैं आज पहला रमजान है, या पहला रोजा, या दूसरा रोजा, या तीसरा रोजा। तो जो चीज गिनी जाती है वो ज्यादा नहीं होती है, वो मिकदार में कम होती है। अल्लाह हम सबको रमजान के महीने के रोजे रखने की तौफीक नसीब फरमाए। माँ बहनें हैं, मजबूरी है, जिन अय्याम में अल्लाह पाक की तरफ से नमाजें माफ है, उन अय्याम में रोजे की भी इजाजत नहीं है, लेकिन रोजे की बाद में कदा कर सकती है, लेकिन बगैर शरई उज़्र के किसी को भी रोजा छोड़ने की इजाजत नहीं है। अल्लाह हम सबको रोजे की अहमियत समझने की और रोजा रखने की अल्लाह हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। दूसरी इबादत इस महीने में तरावी कुरान करीम से पढ़ना सुन्नत है, और पूरे महीने में कुरान करीम पढ़ना सुन्नत है। कुरान करीम से पढ़ना एक मुस्तकिल सुन्नत है, और पूरे महीने तरावी का पढ़ना ये भी एक मुस्तकिल सुन्नत है। लेकिन इस वक्त चूंकि मजबूरी है, आपका दिल तो बड़ा चाहता होगा कि अल्लाह के कुरान को सुने, और जरूर इस वक्त आप घर पर तरावी पढ़ोगे, चाहे अलम तरह से पढ़ोगे, चाहे आपके पास हाफिज का इंतजाम है, कुरान करीम से पढ़ोगे, 10 सूरतों से पढ़ोगे, 10 सूरतें याद नहीं है 2 सूरतों से पढ़ोगे, लेकिन तुम्हारे जो जज्बात हैं उन जज्बात की अल्लाह पाक कदर करेगा, उन जज्बात की अल्लाह पाक कदर करेगा। अगरचे तुम तरावी पढ़ते हो अलम तरह से, लेकिन नामा अमाल में लिखा जाएगा कुरान करीम से। इसलिए कि अल्लाह पाक दिलों को जानते, मेरे बंदे की दिल की कैफियत क्या है, मेरे बंदे के जज्बात क्या है। अल्लाह पाक की यहाँ जज्बात की बड़ी कदर व कीमत है। इसलिए तो हदीस में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब कोई बंदा नेकी का इरादा करता है तो नेकी उस वक्त तो उसने की नहीं है, लेकिन इरादा कर लिया। जैसे मिसाल के तौर पर हमने इरादा कर लिया कि आइंदा कल इंशाल्लाह हम तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे, हालांकि अभी पढ़ी नहीं है, लेकिन किया है सिर्फ इरादा। हदीस पाक में लिखा है कि फरिश्ता तहज्जुद की नमाज लिख देता है कि फलाने बंदे ने या फलानी बंदी ने तहज्जुद की नमाज पढ़ ली। लेकिन अगर जब पढ़ लेता है, अभी पढ़ी नहीं, सिर्फ इरादे पर लिख दी गई, लेकिन जब पढ़ता है तो 10 लिख देता है। इसी के बिल मुकाबिल जब कोई आदमी गुनाह करता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है, अल्लाह को नाराज करने वाला काम करता है, अभी दिल में इरादा किया है गुनाह का, गुनाह किया नहीं है, मिसाल के तौर पर उसने गलत देखने का इरादा किया या गलत सुनने का इरादा किया, अभी किया नहीं है वो गुनाह, तो उस वक्त लिखा जाता नहीं है जब तक कि वो गुनाह न करे। और जब गुनाह कर भी लेता है तो एक हदीस में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, गुनाह लिखने वाला फरिश्ता अल्लाह से इजाजत मांगता है, इलाहुल आलमीन ये तेरा फलाना बंदा, ये तेरी फलानी बंदी, उसने फलाना गुनाह किया है, क्या मैं उसको रजिस्टर में लिख लूं? अल्लाह की तरफ से क्या जवाब मिलता है? फरिश्ते इंतजार करो, हो सकता है तौबा कर ले, हो सकता है तौबा कर ले, हो सकता है तौबा कर ले, लेकिन तौबा नहीं करता, उसके बाद गुनाह लिखा जाता है। अल्लाह हम सबको रमजान के महीने में गुनाहों से माफी मांगने की तौफीक नसीब फरमाए। तो दूसरी इबादत तरावी है, अपने घर में रहकर इसको जरूर अदा करना है। हदीस में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हदीस के बयान करने वाले हजरत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, सरकार मदीना हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमजान की पहली रात होती है तो आसमान के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं और कोई दरवाजा बंद नहीं होता यहां तक कि रमजान का महीना मुकम्मल न हो जाए। फिर हमारे नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमजान मुबारक के महीने में मेरा कोई उम्मती रात को इशा के बाद की नमाज पढ़ता है, यानी तरावी की नमाज। हदीस पाक में लिखा है कि हर नमाज में सजदा होता है, अल्लाह पाक एक सजदे के बदले में उसे 1500 नेकियां नसीब फरमाते हैं, सिर्फ एक सजदे के बदले में। अब तरावी की 20 रकातों में कितने सजदे वो आप गिन सकते हैं, 2 रकात में 4 सजदे, तो 2 रकात की 6000 नेकियां। हदीस पाक में सजदे की नेकियों को बयान किया। क़याम का सवाब तो अल्लाह ही जानता है, रुकू का सवाब तो अल्लाह ही जानता है, कायदे का सवाब तो अल्लाह ही जानता
है, जलसे का सवाब तो अल्लाह ही जानता है। सिर्फ सजदे का सवाब बयान फरमाया। फिर हदीस में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरा जो भी उम्मती तरावी की नमाज पढ़ता है अल्लाह पाक उसका घर जन्नत में बना देते हैं। आज दुनिया में लोगों को अच्छे से अच्छे घरों में रहने की तमन्ना होती है, लेकिन हदीस पाक में जन्नत के घर की कैफियत सुन लो। ऐसा घर, आज कोई मालदार होगा तो उसके घर के 2 दरवाजे होंगे, किसी के घर के 3 दरवाजे होंगे, किसी के घर के 4 दरवाजे होंगे, किसी के घर के 5 दरवाजे होंगे, किसी के घर के 10 दरवाजे होंगे। लेकिन हदीस पाक में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे उस उम्मती के घर के, जन्नत के घर के 60,000 दरवाजे होंगे, 60,000 दरवाजे होंगे, और ऐसा घर जो सुर्ख याकूत से आरास्ता होगा। लेकिन मेरे प्यारों, कब? जब तरावी पढ़ने पर अल्लाह की तरफ से इनाम मिलने वाला है। और हमारे नबी की जुबान पर हमें यकीन होना चाहिए, दुनिया तो एक दिन छोड़नी ही छोड़नी है। कितने भी अच्छे बंगले में रहो, कितने भी अच्छे मकान में रहो, ठिकाना तो जन्नत है इंशाअल्लाह, अगर दुनिया की जिंदगी अल्लाह को राजी करके गए हैं। फिर हदीस में क्या फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब मेरा कोई उम्मती रमजान का पहला रोजा रखता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी पिछली जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ फरमा देते, उसकी सारी खताओं को माफ फरमा देते। और हदीस में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे प्यारो, हमारा अकीदा है कि कोई अल्लाह का नेक बंदा दुआ करता है हमारे हक में तो वो दुआ जरूर कबूल होती है। और मैंने पहले आपको बतलाया था, अगर कोई गुनहगार बंदा भी हमारे हक में दुआ करता है तो अल्लाह पाक उसकी दुआ को जरूर कबूल फरमाते। हदीस में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रोजा रखने वाले बंदे के लिए या रोजा रखने वाली बंदी के लिए सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक, यानी सहरी से लेकर इफ्तार के वक्त तक 70,000 फरिश्ते, 70,000 फरिश्ते उसके लिए मगफिरत की दुआएं करते हैं। और कुरान करीम में मौजूद है, फरिश्ते अल्लाह की वो जमात जिनसे कोई गुनाह नहीं, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून। अल्लाह फरमाते, फरिश्तों की जमात वो जमात है जिनसे कोई गुनाह नहीं, जिनसे कोई नाफरमानी नहीं, जिनसे अल्लाह को नाराज करने वाला कोई काम नहीं। तो रोजा रखने वाले के लिए 70,000 70,000 फरिश्ते दुआ करते हैं। और आगे हदीस में क्या फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रमजान मुबारक के महीने में मेरा उम्मती नमाज पढ़ता है, कोई भी नमाज हो, चाहे दिन की नमाज हो, रात की नमाज हो, नमाज में सजदा होता है, हर सजदे के बदले में अल्लाह पाक उसे जन्नत में एक दरख्त नसीब फरमाएंगे, एक झाड़ नसीब फरमाएंगे। और उस दरख्त की, उस झाड़ की कैफियत हदीस पाक में ये बयान फरमाई, ऐसा दरख्त होगा जिसके साए के नीचे आदमी चलेगा तो 500 साल का रास्ता होगा। तो मेरे